پیارے بچوں، آئیے بحث کریں۔ اس عنوان کے تحت ہم ایک سوال پر بحث کریں گے۔ سوال ہے یا بحث کا موضوع ہے، کون سے عادات کس عمل کے لیے کافی ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں ریاضی میں 4 بنیادی اعمال ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ یہ 4 بنیادی اعمال ہیں، اور ہم جانتے ہیں عادات کے سیٹ۔ سب سے پہلا جو سیٹ طبعی عادات کا سیٹ ہے، اس کے بعد مکمل عادات، صحیح عادات اور ناطق عادات۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے عادات، جیسے طبعی عادات، کس عمل کے لیے کافی ہے، یعنی کیا تمام طبعی عادات جمع کے عمل کے لیے کافی ہے، تفریق کے لیے کافی ہے، ضرب کے لیے کافی ہے، تقسیم کے لیے کافی ہے۔ اگر 2 طبعی عادات کے درمیان جمع کرنے پر حاصل جمع بھی طبعی عدد آتا ہے تو اس کا مطلب وہ جمع کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بھی 2 عادات کے درمیان تفریق کا عمل کرنے پر ہمیشہ اگر طبعی عدد ہی آتا ہو تو وہ تفریق کے لیے کافی ہوگا، اگر نہیں آتا ہو تو نہیں ہوگا۔ اگر جمع کے لیے طبعی عدد کافی ہیں تو ہمیں رائٹ کرنا ہے، اور اگر کافی نہیں ہے کسی عمل کے لیے تو ہمیں وہاں پر کراس کا نشان لگانا ہے اور وہاں مثال بھی دینا ہے۔ جیسے طبعی عادات، ہم جانتے ہیں طبعی عادات 1 2 3 4 بے شمار۔ کوئی بھی 2 طبعی عادات کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو جواب طبعی عدد ہی ہوتا ہے۔ جیسے 1 جمع 2 3، 3 جمع 5 9۔ جیسے 2 عادات کو آپ جمع کریں گے تو ظاہر ہے ان سے بڑا ہی عدد آئے گا، ان سے آگے کا ہی طبعی عدد آئے گا۔ طبعی عادات کی جمع کرنے پر ہمیشہ جواب بھی طبعی عدد ہی آتا ہے، یعنی طبعی عادات جمع کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد تفریق، 2 طبعی عادات کے درمیان تفریق ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم 10 اور 7، 10 میں سے 7 تفریق کرتے ہیں تو جواب 3 آتا ہے، وہ بھی طبعی عدد ہے۔ لیکن اگر ہم 7 میں سے 10 تفریق کریں، یعنی چھوٹے عدد میں سے اگر ہم بڑا عدد تفریق کریں، جیسے 7 میں سے ہم تفریق کریں 10، تو تب ہمارا جواب کیا آئے گا؟ 10 میں سے 7 جائیں گے، بچیں گے 3 اور علامت لگے گی 10 کی، یعنی جواب آئے گا -3۔ یعنی 2 طبعی عادات کے درمیان ہم نے تفریق کا عمل کیا، جواب -3، یعنی طبعی عدد نہیں آیا، کیونکہ منفی عدد طبعی عدد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب 2 طبعی عادات کے درمیان تفریق کا عمل کرنے پر ہمیشہ جواب طبعی عدد نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب طبعی عادات تفریق کے عمل کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اب ضرب کے دوران کوئی بھی 2 عادات کا ہم اگر ضرب کریں، 7 دائیں 70، 2 چوک 8، 2 مثبت عادات، طبعی عادات مثبت عادات ہوتے ہیں، جواب بھی مثبت ہی آئے گا اور وہ طبعی عدد ہی آئے گا، چونکہ وہ دیے ہوئے عادات سے بڑا ہی عدد رہے گا یا برابر رہے گا۔ 1 ضرب 1، 1 ایکا 1۔ تو 2 طبعی عادات کے درمیان ضرب کرنے پر جواب بھی طبعی عدد ہی آتا ہے، یعنی طبعی عادات ضرب کے عمل کے لیے کافی ہے۔ اب تقسیم کے لیے، جیسے 10 کو ہم 5 سے تقسیم کریں گے، 5 دونی 10، جواب 2 آئے گا۔ یہاں تو طبعی عدد آ رہا ہے، لیکن اگر ہم 5 کو 3 سے تقسیم کرتے ہیں، 5 کو ہم 3 سے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں بھی طبعی عدد ہے، تو جواب یہاں پر ہمیں لکھنا پڑے گا 5/3۔ اور 5/3 یہ طبعی عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب 2 طبعی عادات کے درمیان تقسیم کا عمل کرنے پر جواب طبعی عدد ہی آتا ہے، ایسا ضروری نہیں، کبھی طبعی عدد بھی آئے گا اور کبھی طبعی عدد نہیں بھی آئے گا۔ مطلب یہ کہ تقسیم کے عمل کے لیے طبعی عادات کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں مکمل عادات، صحیح عادات اور ناطق عادات کے لیے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ عادات جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے لیے کافی ہیں۔ مکمل عادات میں آپ جانتے ہیں کہ مکمل عادات 0 سے شروع ہوتے ہیں، 0 1 2 3 4 5 6 بے شمار۔ 2 مکمل عادات کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو جواب مکمل عدد ہی آئے گا۔ 0 0 جمع 0 0 0 جمع 1 1، یعنی جمع کے لیے مکمل عادات کافی ہے۔ تفریق کے لیے جیسے 7 اور 10 یہ طبعی عادات ہیں تو مکمل عادات بھی تو ہے، تو یہاں پر جواب -3 آیا، اور منفی عادات مکمل عادات بھی نہیں ہوتے۔ تو جس طرح تفریق کے لیے طبعی عادات کافی نہیں ہے، مکمل عادات بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جواب منفی آ سکتا ہے۔ یہ
तफरीक के अमल के लिए मुकम्मल आदात काफ़ी नहीं है। यहाँ पर जैसे हम मिसाल लेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद में से बड़ा अदद हम तफरीक कर रहे हैं। जैसे 3 में से हम तफरीक करेंगे 4 तो जवाब आएगा -1, और -1 मुकम्मल अदद नहीं है। ज़रब करने पर मुकम्मल आदात 0 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 4 9, कोई भी 2 मुकम्मल आदात को आप ज़रब करोगे तो जवाब मुकम्मल अदद ही होगा, यानी ज़रब के अमल के लिए मुकम्मल आदात काफ़ी हैं। तक़सीम के लिए वही होगा जो तबई आदात के साथ हुआ, यानी यहाँ पर तक़सीम के लिए तबई आदात काफ़ी नहीं थे, मुकम्मल आदात भी काफ़ी नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम एक मिसाल दे सकते हैं, ये भी मिसाल काफ़ी है मुकम्मल आदात के लिए, या फिर हम दूसरी मिसाल लेंगे, जैसे 6 तक़सीम 7 बराबर होगा 6/7, और ये 6/7 ये मुकम्मल अदद नहीं है। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें, 0 मुकम्मल अदद है, लेकिन 0 से कभी भी किसी को तक़सीम नहीं किया जा सकता। 6 तक़सीम 0 ये मिसाल हम नहीं ले सकते। 6 तक़सीम 0 यानी 6/0 आएगा, और 0 को रियाजी में तक़सीम करने का हक बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो मुकम्मल आदात तक़सीम के अमल के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद सही आदात हम लेंगे, 2 सही आदात, जैसे कि तमाम मनफी आदात 0 और मुस्बत आदात सब मिलाकर सही आदात होते हैं। कोई भी 2 सही आदात को आप जमा करेंगे आपस में तो वो जवाब सही अदद ही आएगा। जमा के लिए सही आदात काफ़ी हैं। तफरीक करेंगे कोई भी 2 सही आदात को तो जवाब या तो मुस्बत आएगा या मनफी आएगा, और मनफी भी आएगा तो वो सही अदद ही कहलाएगा, यानी तफरीक के अमल के लिए भी सही आदात काफ़ी हैं। ज़रब के लिए 2 आदात को आप ज़रब करेंगे, 2 सही आदात को मनफी को मुस्बत से ज़रब करेंगे या 0 से ज़रब करेंगे, हर बार जवाब सही अदद ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो मनफी अदद आएगा या तो मुस्बत अदद आएगा। 2 मनफी आदात को ज़रब करेंगे तो जवाब मुस्बत आ जाएगा। जो भी आएगा हासिल ज़रब सही अदद ही होगा, यानी सही आदात ज़रब के लिए भी काफ़ी है। अब तक़सीम हम करते हैं। तक़सीम के लिए सही आदात काफ़ी नहीं है। क्यों? देखिए मिसाल हम देखेंगे कि हम 2 सही आदात लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये -4 को तक़सीम करेंगे 7 से। -4 भी सही अदद है, 7 भी सही अदद है। अब हम यहाँ पर तक़सीम करेंगे तो जवाब लिखना पड़ेगा हमें -4/7। अभी -4/7 ये सही अदद नहीं है। इसका मतलब 2 सही आदात की हमने तक़सीम की, लेकिन हासिल तक़सीम सही अदद नहीं आया है, यानी तक़सीम के लिए सही आदात काफ़ी नहीं है। अब यहाँ देखिए, तक़सीम के लिए ना तो तबई आदात काफ़ी है, ना मुकम्मल आदात काफ़ी है, या ना सही आदात काफ़ी है, क्योंकि हर बार यहाँ पर आने वाला जो जवाब है वो नातिक अदद है। 5/3, 6/7, -4/7 ये सब नातिक आदात है। तो अब हम देखते हैं कि नातिक आदात कौन कौन से अमल के लिए काफ़ी हैं। 2 नातिक आदात को अगर हम जमा करते हैं तो जाहिर है तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात में जब आने वाला जवाब वही अदद आ रहा है तो नातिक आदात को भी जमा करने पर आने वाला जवाब नातिक अदद ही आता है, यानी नातिक आदात जमा के अमल के लिए काफ़ी है। तफरीक करने पर भी दो नातिक आदात को अगर हम एक दूसरे में से तफरीक करें तो जवाब नातिक अदद ही आएगा। ज़रब करने पर 2 नातिक आदात को ज़रब करने पर जवाब नातिक अदद ही आएगा, और तक़सीम करने पर भी 2 नातिक आदात की तक़सीम करने पर जवाब नातिक अदद ही आएगा। नातिक आदात जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम चारों बुनियादी अमाल के लिए काफ़ी हैं। अब अगर हम इस जदवल पर गौर करें तो सिर्फ नातिक आदात ऐसे हैं जो चारों बुनियादी अमाल के लिए काफ़ी हैं। सही आदात सिर्फ जमा, तफरीक और ज़रब के लिए काफ़ी हैं, तक़सीम के लिए काफ़ी नहीं है। मुकम्मल आदात और तबई आदात ये सिर्फ जमा और ज़रब के लिए काफ़ी हैं, तफरीक और तक़सीम के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये हमारी समझ में आ गया। सबसे पहली बात, तबई आदात और मुकम्मल आदात जमा और ज़रब के लिए काफ़ी हैं, लेकिन तफरीक और तक़सीम के लिए काफ़ी नहीं हैं। तबई आदात और मुकम्मल आदात जमा और ज़रब के लिए काफ़ी हैं, लेकिन तफरीक और तक़सीम के लिए काफ़ी नहीं हैं। दूसरी बात, सही आदात
जमा तफरीक और ज़रब के लिए काफ़ी हैं लेकिन तकसीम के लिए काफ़ी नहीं है। सही आदात जमा तफरीक और ज़रब के लिए काफ़ी है लेकिन तकसीम के लिए काफ़ी नहीं है। नातिक आदात का सेट सभी बुनियादी अमाल के लिए काफ़ी है। नातिक आदात का सेट सभी बुनियादी अमाल के लिए, जमा तफरीक ज़रब और तकसीम, इन सभी अमाल के लिए काफ़ी है। लेकिन याद रहे कि सिफ़र से तकसीम नहीं की जा सकती। जैसे कि आपको बताया गया कि सिफ़र को तकसीम करने का हक नहीं है। रियाजी में कभी भी सिफ़र से किसी अदद को तकसीम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो जदवल किताब में दी गई है उसमें मुकम्मल आदात का जिक्र नहीं है, इसमें खुसूसन मुकम्मल आदात को भी यहाँ पर हमने शामिल किया है। प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब में कुछ करेक्शंस कर लीजिए। जैसे सफ़ा नंबर 34 पर नातिक आदात पर अमल के तहत जो मिसालें दी गई है उसमें यहाँ पर ये पहली मिसाल है। पहली मिसाल में यहाँ 11 ज़रब 7 होना चाहिए, इसको आप अपनी किताब में करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरी मिसाल, ये तीसरी मिसाल, ये तीसरी मिसाल जो दी गई है तो ये इतना हिस्सा आप इसे कट कर दीजिए क्योंकि ये रिपीट हुआ है। ये यहाँ से ये तीसरी मिसाल हल की गई है। यहाँ ये चौथी मिसाल भी रिपीट हुई है। ये दोनों में से ये एक को आप यहाँ पर कट कर लीजिए।